Good morning. You are most welcome in Photons IAS Academy, which was established in 2003. Now it has completed near about 23 years. It has several branches throughout the country in Delhi, Mumbai, Arunachal Pradesh. Today we want to discuss a interview program concerning with the Arunachal Pradesh Public Service Commission. As per our information, Commission is going to declare results very soon, maybe end of this month or first week of the July. So students should start preparation before the declaration of the result. Basically, there are three stages of interview. First stage of interview is before the declaration of result. Second stage after the declaration of result. And the third stage on the day of interview. इन सब चीज़ों में आपको किस तरह से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्या क्या करना होना चाहिए, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन सिविल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन अब से धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करते हैं. बेसिकली जो चीज़ें हमें ध्यान देने की है, जो बिफोर इंटरव्यू है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि नो योर सेल्फ थारोली. नो योर सेल्फ थारोली मीन्स होता है कि पहले आपको अपनी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ नोन एज द DAF फॉर्म should read properly line by line, because interview board is going to examine your personality test, not your knowledge. It assumes that you have qualified the mains exam, your knowledge has been checked. Now your personality, which includes different part, means your discipline, your handling power, your presentations, all these things that is judged in interview programs. Here, before when you want to know yourself, first you should take your copy and pen. You should start to prepare a resume properly, which should include name, hometown, hobbies, graduation, subjects, and your work experience. Some question is also expected with your name. Generally, interview board members ask the question, what is your name? Or it asks, please introduce yourself. So when the question is asked to introduce yourself, its purpose is that members want to cool down the aspirants. Then you should start, my name is this. But if there is some specific meaning of name, then you should also aware what is the meaning of the name. Then what is your hometown? Why your hometown is famous? You must be ready to know and to explain 5 important points of your hometowns. And if it is any city, then why it is famous, what are its historical development, what are its geographical development, political development. इन सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली तैयार करके रखना होगा. दूसरा पॉइंट्स जो आते हैं नो योर नॉलेज में, हॉबीज़. हॉबीज़ बहुत सारे लोग भर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं रहता है कि एक्चुअल उनकी हॉबी क्या है. तो चूँकि आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हॉबीज़ भर चुके हैं, जो कि अब चेंज नहीं की जा सकती है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपकी हॉबी भरी हुई है उस पर आप काम करना शुरू करें. अगर आपको बुक रीडिंग का हॉबी है, तो आप अच्छी बुक्स पढ़ें, उनके ऑथर्स के नाम पता होना चाहिए, उन बुक्स में क्या पॉइंट्स हैं. आप इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को ब्लफ करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि दे आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस, एटलीस्ट दे हैव जॉब एक्सपीरियंस 20-25, इवन दो 30-35 years. Basically, most of them are either bureaucrats, or professors, or any social workers, or any psychologists. So never try to bluff the board members. If you don't know the answer, best option is there. Be sorry for that. And next important point is, what is your subject in your graduation as well as your optional papers. If your optional subject is same as your graduation,
then there is no problem. You should start basics of that subject, application part of that subject. How can you use in administration in that subject? For example, suppose you are from engineering background, suppose you are from information technology, then what are the application of information technology in the administration? How can you help the administrative work? How can you solve the administrative work with your graduation knowledge or engineering knowledge? Similarly, suppose you are from the medical background, you are a doctor. So naturally question will arise, why being a doctor you want to come in the civil services examination? So you should be properly ready to reply these questions. These are a very natural questions which may be asked at any time by the member boards. And the next point is work experience. सपोज आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप कोई दूसरे किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आपने उस जॉब को क्यों छोड़ा, क्या प्रॉब्लम्स थी, आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका क्लियर विज़न होना चाहिए. देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी बिकॉज member want to check your confidence, member want to check your clarity. If you are in ambiguous stage, then it is not good, it will harm you, not benefit you. And second stage, third stage is, that is the current affairs. It is a very very important part because it check, are you connected with the world, are you connected with the India, are you connected with the local issues, are you aware local issues, how can you tackle the problems. तो इसके लिए आप पिछले 3 से 4 महीने के जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स हैं उनको अगर आप सेल्फ बनाए हैं तो आप उनको रिवाइज करने का काम करें. अगर सेल्फ नहीं बनाए हैं तो मार्केट में मैगजीन्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं. पिछले लगभग 5 से 6 महीने का जो भी इंसिडेंट हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है, नेशनल लेवल पे क्या हुआ है, कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई, कौन पर्सनालिटी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसकी डेथ हुई है, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली तैयार करके आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है. नेक्स्ट स्टेज इज पर्पज. व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरव्यू? Never think that the purpose of interview is to check your knowledge. As I told earlier, its main purpose is to check your handling power. Its main purpose is to check your mental alertness. Its main purpose is to check your etiquettes. Its main purpose is to check your different qualities, discipline, etc. But generally 2-3 questions may be expected from your optional paper or your GS paper. That should be also ready and prepare its basics. And next stage, you should do mock interview. That may be in some coaching institution, that may you also practice in your home by sitting before the mirror, by recording your interview, and after that visualize it and try to find out what are the problems, how can you improve, how are your body language, how are your hand movements, and etc. So these points should start before the declaration of the result. On the day of interview, आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, आपके ड्रेस अप्रोप्रिएटली क्या है, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, मॉडेस्ट ड्रेस होनी चाहिए. मेंस के लिए सबसे बेस्ट है लाइट शर्ट होना चाहिए, डार्क ट्राउजर्स होने चाहिए, फॉर्मल शूज होनी चाहिए, टाइज एंड ब्लेजर्स होने चाहिए. दैट इज ऑप्शनल. इफ़ यू वांट यू कैन यूज, यू कांट, इफ़ यू डोंट वांट यू कांट यूज. वुमेंस के लिए जनरली साड़ी, सलवार कुर्ता और फॉर्मल वेयर वेस्टर्न सूट्स दे कैन बी वेयर. इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के एक सेट फोटोकॉपी ये साथ में लेके जाना है, जिससे वहाँ कोई भी चीज़ मांगा जाए तो आप उनको प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकें. और तीसरा पॉइंट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू का है कि वॉक इन कॉन्फिडेंसली. जब आप बोर्ड के मेंबर के सामने चैम्बर में आप जाते हैं तो कॉन्फिडेंटली जाइए. आप उनसे परमिशन लीजिए. परमिशन लेने के बाद जब आपको वो कहें कि प्लीज़ सिट डाउन, देन यू सिट डाउन. उसके बाद आपको करना है कि स्ट्रेट बैठना है, स्माइल करते रहना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं.
लाइट स्माइल, मतलब जेंटल स्माइल, ये नहीं कि लगे कि ये कुछ हमें कुछ अलग तरीके से स्माइलिंग दे रहा है। और अपने हैंड को काम रखना है। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या करने हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स। फर्स्ट इम्प्रेशन मीन्स व्हेन यू एंटर इन द बोर्ड यू ग्रीट द पैनल मेंबर्स पोलाइटली। इफ देयर इज एनी फीमेल इन द बोर्ड मेंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should greet the female members, then chairman of the board who is sitting on the center. After that you should greet other members, and when they give the permission to sit, then you try to sit on chair properly and confidently, and wait until the question is not asked by the board member. And next important point is be honest and humble. If you don't know answer of any question, don't try to befool them. Bluffing is never tolerated in the interview because they are highly experienced. They have seen several students in your life. The age of their children is the age of aspirants. They know what aspirants are doing right now. They are fully aware. तो कभी भी उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको काम हो करके रहना है। उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उस दिन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को मॉर्निंग में एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के मेंबर उस दिन की इंसिडेंट पूछते हैं, व्हाट आर टुडेज इंसिडेंट्स। तो if you have go through the newspapers, or especially national, international as well as the local newspapers, then it would be helpful to at least elaborate, to at least explain what is the today's important news. Second thing, be always polite and peaceful. Third point जो आपको करना है, stay true to your DAF. आपने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ भरा है उसी के आपको एडहेयर रहना है। आपको टाइम भी उससे बियॉन्ड नहीं जाना है, क्योंकि दैट हैज़ बीन गिवन इन रिटन टू द कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर जो भी आपको देना है वो ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लंबे लंबे प्रश्नों का लंबे लंबे आंसर नहीं देने हैं, घुमा करके नहीं देना, सीधे साधे देना है, जिससे कि बोर्ड के मेंबर आप क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। इन सब के साथ साथ आपको एक अच्छा पॉस्चर भी मेंटेन करके रखना है, जिससे कि इनडिसिप्लिन जैसी चीज़ें उनको रिफ्लेक्ट ना होने पाए, क्योंकि अब आपका लास्ट स्टेज है जो आपकी ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने जा रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना है। और क्या क्या पॉइंट आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। पहला पॉइंट, डोंट बी आर्गुमेंटेटिव। अगर बोर्ड का मेंबर कोई क्वेश्चन कहता है आपको, आप उसके आंसर से सहमत नहीं हैं, आप अपने पॉइंट को पोलाइटली रख सकते हैं, लेकिन उससे झगड़े जैसी बात नहीं, उसे हाई पिच में बात करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपके खिलाफ जाएगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की मेंटेन होती है। सबऑर्डिनेट को हमेशा पोलाइटली अपने सीनियर से बात करनी है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड का पर्पज़ ही है कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, आप सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको नहीं करना है, आप अपने ज्ञान का शो ऑफ नहीं करें। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, यस आप उसके आंसर दें। अगर नहीं जानते हैं तो झूठे बताने की कोशिश नहीं कीजिए कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ द शो ऑफ। थर्ड पॉइंट जो आपको नहीं करने हैं, कोई पॉलिटिकली चार्ज ओपिनियन नहीं देना है। पॉलिटिकली चार्ज ओपिनियन मीन्स, मान लो आपसे रिलीजियस पे कोई क्वेश्चन बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख पे कोई बात बनती है, या कास्ट सिस्टम पे रिजर्वेशंस पे कोई बात करती है, या वोमेन से रिलेटेड कोई बातें होती हैं, तो इन सब पे आप अपना जो भी ओपिनियन है उसको पोलाइटली पेश करना है। उसके लिए आपको ज़बरदस्ती उनसे भिड़ना नहीं है। अगर वो कोई सजेशन देते हैं और आपको लगता है कि वो सजेशन सही है, तो आपको पोलाइटली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे हमें नॉलेज नहीं था, हम आपके पॉइंट को समझते हैं और हम उसको मानेंगे। उसके अलावा ज़बरदस्ती कोई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश बोलने की ज़रूरत भी नहीं है।
टेक्निकल टर्म्स भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पर्पज़, मेन पर्पज़ है कि आपका चेक करना कि किस तरह से आप प्रेज़ेंट होंगे और किस तरह से प्रेज़ेंट नहीं होंगे।